just start the record. Fine. So website can be made for any individual people. It can be made for any organization, or it can be made for anyone. So for example, let's say if you want to build your own website, you are having your personal interest, you can build your own website. You can host it in the domain. So in last session also we were discussing that to create websites, there are many domains, there are many platforms. You can build your website in PHP, you can build your website in .NET, in Java. There are many frameworks also in which you can build your own website. And after building your website, you will have to host your website so that from any corner, whenever you have internet connection, you can get access of your website. तो अभी हम जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं, फाइन, किसी भी वेबसाइट को मुझे ओपन करना है तो मुझे उसका यूआरएल चाहिए. फाइन. सो वो यूआरएल मतलब क्या, वो आपका डोमेन हो गया कि आपने जब वेबसाइट बनाई है तो आप कौन से नाम से वो वेबसाइट को फाइंड करना चाहते हो, वो डोमेन आपको परचेज करना पड़ता है. So you can purchase the domain, you can host it, and if your website is hosted, then you can access it from everywhere. Yeah, and if you are good at development, then you can build your websites at no cost, and there are many free domains which are also available. ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपको पे ही करना है. अभी मार्केट में कई सारे फ्री डोमेन्स हैं जहाँ पे आप फ्री में अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं एंड फ्री में यू कैन एक्सेस इट. बट उसमें थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, तो टेस्टिंग के लिए हम फ्री डोमेन का यूज कर सकते हैं. अदरवाइज if your website is genuine website and if you have confidential information, then it is not advisable to host your website in the free domain. कभी ऐसा नहीं करना है. अगर आपकी वेबसाइट है वो जेन्यून है, उसमें जो डेटा है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो आपको फ्री डोमेन में कभी भी होस्ट नहीं करना है. अदरवाइज सिक्योरिटी कंसर्न विल बी देयर. Yeah, blogger.com is also there. Yes, Mitesh, you are right. But using Blogger, you can create your own blog. Fine. So blog is very similar to the website where you can showcase your content, you can showcase your things, you can put the text, you can put the images, audio, video, you can give the links also. There are many things you can do. Yeah. So there are many such things using which you can build the website. But today I'm going to explain how you can create your own website using Google Site. Google is also having one tool which is Google Site, where you don't need to even code for your website. Mostly if you go for any programming languages, then you will have to write the code. Right? Mohit was mentioning to build the website we will have to write the appropriate code. मुझे अगर वेब पेज बनाना है तो उसके हिसाब से मुझे उसका कोड लिखना पड़ेगा. वेब पेज में मुझे फॉर एग्जांपल कोई टेबल चाहिए तो टेबल के लिए भी मुझे उसका कोड लिखना पड़ेगा वहां पे. सिमिलरली लेट्स आई वांट टू पुट एनी इमेज, मुझे मेरा वेब पेज है उसमें कोई इमेज पुट करनी है तो उसके लिए भी मुझे वहां पे कोड लिखना पड़ेगा. फाइन. तो वो आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर दोगे, जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, then only you can have certain idea that this is how you can build the website. लेकिन अभी क्या है, this is new for you. As of now you don't have any background knowledge. अभी आपको पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे कोड लिखते हैं, उसमें क्या करना है, कुछ भी पता नहीं है. So as a beginner it is not advisable to go with the website in which you will have to write your code. जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मेरी एडवाइस यही है कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म भी फाइंड करना है जहां विदाउट कोडिंग यू कैन बिल्ड योर ओन वेबसाइट. तो अभी हम वही करने वाले हैं. आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे कि गूगल साइट का यूज करके अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बनाते हैं विदाउट राइटिंग एनी कोड. आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं. फाइन. सो नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू इट. Yeah, so let's see how to create your Google site. So for that, as usual, you need to open your account, you need to do login. So this is what I have done. My account is ready, and now what I can do, I can go to this Google Apps option. See, to find all the Google applications, you can click on this grid. As usual, you will have to find this option. You can click on this grid and you can see there are many Google applications. Right? Mostly we have seen Google Drive, then Docs, Google Sheet, Google Slide is also there that we have discussed. We have discussed Google Calendar also to create the
events, to send an invitation to people. But now today we are going to discuss this one. The option is sites. Using this option, you can build your own website, you can create it, and you can host it, and you can share your link so that everyone can access it. तो अभी आज का जो सेशन खत्म होगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हो, उसमें कई सारे पेजेस भी आप डाल सकते हो, और उसका जो यूआरएल है वो आप किसी अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को भी दे सकते हो, और उसको बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, एंड उसको आप बोल सकते हो कि ये वेबसाइट मैंने बनाई है, जब आपको टाइम मिले तो एक बार आप देख लो, ताकि उसको भी पता चले कि नाउ यू हैव टेकन एडमिशन इन इंजीनियरिंग एंड यू आर गोइंग टू बी कंप्यूटर इंजीनियर, and so you need to know how the things are happening. So let's start. What we will do, let me just select this option, sites, just click on that. See here, there are predefined templates are also available. If you want to create a website for class, then you can simply select this, where template will be ready for you. आपको केवल जो आपका कंटेंट है वही चेंज करना है. अगर आप यहाँ से क्लास का जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, वहां आपको जो भी कंटेंट लिखना है और जो चेंज करना है वो आपको करना है, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी रेडी. फिर ये देखो, कोई क्लब स्टार्ट करना है तो उसके लिए कई सारे फोटोग्राफ्स है, क्लब का नेम है, उसका डिस्क्रिप्शन है. स्टूडेंट के लिए कोई पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए भी एक टेम्पलेट रेडी है. सो देयर आर मेनी थिंग्स, बट इफ यू डोंट वांट टू यूज एनी टेम्पलेट, आपको अभी कोई टेम्पलेट का यूज ही नहीं करना है, आपको अपनी खुद की डिजाइन की हुई नई वेबसाइट बनानी है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस वन. यू नीड टू क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट जिसमें अभी कुछ है ही नहीं. फाइन. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस ब्लैंक. जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको वहां पे अपनी ब्लैंक वेबसाइट दिखेगी जहां पे कुछ भी नहीं है, और ये जो वेबसाइट है उसका यूआरएल यहाँ से स्टार्ट होगा, sites.google.com/ देन हम यहाँ पे अभी अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम देने वाले हैं. देखो अभी दिस वेबसाइट इज हैविंग untitled site. Whatever name you want to give, you can give the appropriate name. Let's say testing demo. I am giving the name of my website which is testing demo. मैंने अभी अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम दे दिया टेस्टिंग डेमो. फाइन. फिर अगर मुझे यहाँ पे वेबसाइट का जो मेरा जो कवर पेज है, अपने अपनी फेसबुक वॉल में भी कवर पेज देखा होगा, तो ये आपका कवर पेज हो गया. वहां पे बैकग्राउंड में आपको अगर कोई इमेजेस पुट करनी है तो आप पुट कर सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ टाइटल डालना है तो वो भी डाल सकते हो. देखो वो कैसे करते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज पुट करनी है, सो यू कैन सी हियर, फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द इमेज. यहाँ से मुझे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, चेंज इमेज, click on upload, and from your laptop or from your mobile you can find various images. So let me pick the RK University photo. You can see in the background the image is there. यहाँ पे मुझे कुछ टाइटल डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, कुछ भी नहीं डालना है तो आई कैन जस्ट रिमूव इट. आई डोंट वांट टू राइट एनीथिंग देयर. यहाँ पे मुझे कुछ डालना ही नहीं है तो मैंने वहां से हटा दिया. तो अभी देखो ये मेरी जो वेबसाइट का नेम है वो टेस्टिंग डेमो है, और उसका जो कवर पेज है उसमें मैंने एक इमेज यहाँ पे डाल दी. वो कैसे करनी है वो आपने देखा. फ्रॉम हियर यू कैन चेंज इट. फिर अभी देखो यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देयर आर मेनी लेआउट्स यू कैन सी, एंड मेनी थिंग्स आई कैन पुट इन दिस वेबसाइट. सी देयर आर मेनी थिंग्स. आपने कई सारी वेबसाइट देखी होगी जहाँ पे वो गूगल मैप दिखाई दे रहा है. तो अभी देखो फ्रॉम हियर you can put the calendar, you can put the YouTube also, you can put the map, you can put documents, slides, everything you can put from here only. तो अपनी वेबसाइट में आपको अगर किसी को कोई लोकेशन का मैप दिखाना है तो वो भी इजीली विदाउट राइटिंग एनी कोड यू कैन डू इट. आपको उसके लिए कोई कोड नहीं लिखना है, सिंपल यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से उसको प्लेस करना है. तो हम सब देखने वाले हैं, डोंट वरी. So now in the right side you can see there are three tabs. First tab is insert, second one is pages, and the last one is themes. From themes you can select various font patterns. You can see there are various types of fonts, and from here you can select the theme color also. Default color is this. Now let me change it. So you can see my my website is having this theme now. If I want to modify it like this, you can go with this. If you want to go with black, if you want to, and if you want to select this one, you can see. So let me go with this one, pink color.
Now let me insert few things. Let's say I want to write. I want to insert one text box here. So what I have done, I have clicked on this insert tab from where I have selected this text box. You can see now there are two text boxes. If you don't want, you can delete it from here. You can delete it. As of now, there is one text box. Now let's say I want to write something. Welcome to RK University. At RK University, we provide various courses like, and let me give the name, let's say computer engineering, mechanical engineering, civil engineering, and electrical engineering. If you don't get anything, then you can just raise your hand, or you can raise your doubts in the chat box. I'll surely address your question. Yeah. So मैंने अभी क्या किया, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, वहां पे मैं कुछ कंटेंट डालने जा रहा हूँ, तो वो मैंने कंटेंट यहाँ पे मेरा प्रिपेयर कर दिया, वेलकम टू आरके यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप उसकी जो फॉन्ट पैटर्न है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। You can increase or decrease the size of your font also. And let's say I have given like this. Then let's say I want to go with the bullets. I don't like these bullets, but I want to go with this one. Yeah, and I want to go with bold fonts. So whatever modifications you need, you can do that. तो अभी मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसमें यहाँ पे क्या किया मैंने, उसमें जो भी कंटेंट मुझे लिखना था वो मैंने लिख दिया है। फिर लेट्स से हियर एट द बॉटम इफ यू वांट टू प्लेस वन इमेज, तो यहाँ से मैं इमेजेस क्लिक कर सकता हूँ, आई कैन अपलोड इट। फिर से आपको इमेज फाइंड करनी है अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। लेट्स से आई वांट टू पुट दिस इमेज एसडीएस, तो देखो अभी एसडीएस का जो लोगो है वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली लेट्स से आई वांट वन मोर इमेज, मुझे अभी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का लोगो भी यहाँ पे ऐड करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ। अगेन क्लिक ऑन दिस इमेज, यू कैन सी दूसरा लोगो भी आ गया। दोनों को आपको एक ही रो में चाहिए, तो यहाँ से आप उसको ड्रैग करके यहाँ पे पुट कर सकते हो। And so it's a pure dynamic website. Whatever thing you want to do, you can do it. जो भी आपको करना है विदाउट कोडिंग यू कैन डू इट। आपको केवल आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए, आपकी इमेजेस रेडी होनी चाहिए, जो भी आपको डिस्प्ले करना है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्या किया हमने, कवर पेज का जो लोगो है, इमेजेस है, वो कैसे चेंज करनी है वो भी देखा यहाँ से। फिर यहाँ पे कुछ लिखना है तो फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट दिस टेक्स्ट बॉक्स, वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना जो भी डिटेल्स आप वहां पे डालने वाले हो वो आपको डालना है। देन मैंने वो भी आपको सिखाया कि आप कैसे इमेजेस भी पुट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट द इमेजेस। फिर यहाँ पे एक टैग है एम्बेड टैग। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेड? एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया अबाउट दिस वन? Yes, you can put your logo also, whatever logo you have, you can put that logo also. Yeah, regarding no, it is not for typing code. Embed code is not for typing. Yes, Neville, you are slightly nearer. Your answer is not perfect, but you are nearer. See, it's a kind of link from where, see, many a times what people are doing, people are inserting the links in the website. तो फॉर एग्जांपल अभी मैं मेरी यूट्यूब की जो चैनल है उसकी कोई भी लिंक यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो जैसे ही यूजर मेरी वेबसाइट को रिफर करेंगे, जैसे ही वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहां से जो पूरा कंट्रोल है वो यूट्यूब में चला जाएगा। देखो यहाँ पे लिंक का भी ऑप्शन होगा, डू वी हैव लिंक ऑप्शन हियर? आई थिंक इट शुड बी देयर, बट we'll have to find out. Yeah, from here you can search the YouTube video also, but let me just open the any video. Let's say I'm creating this. Let me just copy this link. मैं अभी इस लिंक को कॉपी करता हूँ और
लेट्स ट्राई टू पेस्ट इट हियर। देखो अभी यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दी एंड इफ आई सिलेक्ट दिस एंड हियर ओनली यू कैन सी इंसर्ट अ लिंक ऑप्शन। तो अभी ये मेरे लिंक बन गई, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। कोई मुझे बोल सकता है कि इसकी क्या लिमिटेशन है? क्या होगा जब मैं इस वेबसाइट को लॉन्च करूंगा, तो जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी what will happen when I will click on this link? Anyone? Yes, Subham. I think not Subham, but someone was raising the hand. Monil. Yes, Monil. સર એક જ વિડિયો ખુલે આખી આપણી આ જે હોય પ્રોફાઇલ YouTube में નો खुले. You're right, but many answers I have got in the chat box. See, it will redirect you to the YouTube channel or YouTube page. Fine. It will not be like that. The video will open in this website only. वो क्या करेगा? जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से वो रीडायरेक्ट करके YouTube में चला जाएगा। तो अपनी जो वेबसाइट का कंट्रोल है वो चला जाएगा। आपको ऐसा करना है कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट से कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो वीडियो आपकी वेबसाइट में ही लोड होना चाहिए, वो वीडियो आपकी वेबसाइट में ही रन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एम्बेड कोड की जरूरत पड़ेगी। फाइन, तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे लिंक मैंने पेस्ट कर दी, वो भी हम देखने वाले हैं कि जब मैं लॉन्च करूंगा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो यूट्यूब में चला जाएगा। मुझे वैसा नहीं करना है, तो मुझे उसको एम्बेड करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम? So from here you can select this embed, but before this you need to know what is embed code and from where you can get the embed code. Embed code क्या है, वो कैसे पता चलेगा, कहाँ से लेना है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो क्या कर सकते हो आप YouTube में से कोई भी वीडियो को पिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दिस वीडियो, इसको मैंने पिक कर लिया। जैसे ही कोई वीडियो है उसकी आपको एम्बेड कोड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो के ऊपर आप राइट क्लिक करो, just do the right click and you can see from here you can copy the embed code and it is available for each and every video and you can just copy this embed code. Let me just copy it. तो अभी मेरा जो वीडियो है उसका embed code मैंने ले लिया। Now what I'll have to do, I can just click on this option embed और यहाँ पे embed code का जो ऑप्शन है वहां पे जाना है and here I need to paste the entire code. Let's do right click and paste it. देखो अभी मेरा जो कोड था वो यहाँ पे आ गया, जो भी एम्बेड कोड मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे आ गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, it will show the video here. See my video is something like this and I can simply insert this video in my web page. तो यहाँ से मैं उसको इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अभी देखो मेरा वीडियो आ गया, इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, इसकी साइज आपको बढ़ानी है। देखो ऐसे इसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हो। मेरा जो वीडियो है उसकी जो लेंथ है उसके हिसाब से आपको वो स्क्रॉल करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट इट टू बी लाइक दिस एंड नाउ अभी इसमें क्या करना होगा, यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो वहीं पे आपका वीडियो है वो लोड हो जाएगा। इट विल नॉट रीडायरेक्ट योर वेब पेज टू द यूट्यूब पेज। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई हैव डन हियर? एनी डाउट सो फार? या आई एम गोइंग टू रिपीट इट, डोंट वरी। फिर से अभी हम एक दूसरा जो वीडियो है वो भी हम ऐसे एम्बेड करने वाला है। देखो मुझे कोई वीडियो को अपना वेब पेज है उसमें लोड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट का जो टैब है वहां पे क्लिक करना है। फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड दिस कोड, एम्बेड कोड। उसके पहले आपको जिस वीडियो को लोड करना है अपनी वेबसाइट में उसका एम्बेड कोड होना चाहिए आपके पास। फाइन, तो मुझे फॉर एग्जांपल अभी एक दूसरा वीडियो मुझे पिक करना है। लेट्स आई वांट टू गो विथ दिस वन। तो अभी इस वीडियो को मैंने, आई थिंक इट इज सिमिलर, लेट मी पिक द डिफरेंट वन, लेट्स गो विथ दिस वन। अभी ये जो वीडियो है उसका मुझे एम्बेड कोड चाहिए, तो उसको मुझे लोड करना है। देन इस वीडियो के ऊपर मुझे राइट क्लिक करना है एंड फ्रॉम हियर आई कैन कॉपी द एम्बेड कोड। मैंने यहाँ से एम्बेड कोड को कॉपी कर लिया, दैट्स इट। फिर मैं अपनी वेबसाइट में आ गया। वेबसाइट में से मुझे एम्बेड कोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से URL एंड एम्बेड कोड, देयर आर टू ऑप्शंस।
If you have URL, then you need to give URL only. If you have embed code, then you can give the embed code. तो यहाँ से मैं embed code वाला जो टैब है वो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे ही लोड हो जाएगा और यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। देखो अभी मेरा ये दूसरा वीडियो यहाँ पे आ गया, इसको भी आप अपनी साइज के हिसाब से स्प्रेड कर सकते हो। सो आई वांट दिस वीडियो टू बी स्प्रेडेड लाइक दिस। तो अभी देखो यहाँ पे आ गया, फाइन। एनी डाउट सो फार? मोबाइल में शायद उसका जो सेटिंग है वीडियो का वहां से आपको शायद एम्बेड कोड मिलेगा, अदरवाइज आई डोंट नो हाउ टू गेट इट। otherwise you can get the code from laptop or system and you can send it through WhatsApp or email. There are many possibilities. Yes, if we paste the URL, then also it will work the same, but you need to give the appropriate URL and you need to paste your URL here only in the embed code only. पहले हमने जो URL डाला था वो कहाँ पे डाला है? टेक्स्ट बॉक्स में। तो वहां पे डालोगे तो वो अपनी जो लिंक है वो YouTube में चली जाएगी, लेकिन अगर एम्बेड कोड में डालोगे तो वो इसी वेबसाइट में आपका वीडियो यहाँ पे लोड हो जाएगा। यस, एनी मोर डाउट्स? ग्रेट। अभी हम कई सारी चीजें देखने वाले हैं, फाइन। स्लोली यू विल कम टू नो एंड एक बार आपको भी अपनी साइड से प्रैक्टिस करनी है, अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी दिक्कत आ रही है इसमें। स्टिल फ्यू पीपल आर राइजिंग द हैंड। अभी डू यू हैव एनी डाउट? Okay, I think it is by mistake. It's fine. If you have any doubt, you can just use the chat box because it is not easy for me even. To ask you to speak. So it is better that you write your questions in the chat box. I'll go through all the questions and I will give the answer. Yes, Jill, you can earn from the website also, but in the initial stage, it is really difficult. It is really difficult to go with the earning part. No, Neville, if you go with the embed code, then this video will not take more load in your website. So don't worry about that one also. Yeah. So now we have seen that how to put the text box, how to put the images, how to put the embed code. Similarly, if you have any documents which is there in your Google Drives, then from here you can select the drive option. You can find your drive and you can select any files. See here. Once you will click on the drive option, it will open the entire drive. So this is my drive. There are many folders. There are many files. From where you can select any file and that file will be displayed here. So if you want to do that kind of thing, you can do that. So this is how you can design a normal page. ये मेरा वेबसाइट का पहला पेज हो गया. Now let me show the website of RK University. अभी देखो ये RK University की वेबसाइट मैंने ओपन की है यहाँ पे. ये इसका URL हो गया rku.ac.in एंड यहाँ पे कई सारे पेजेस है. देखो जहाँ पे मेरा माउस अभी मूव हो रहा है इसको हम वेब पेजेस बोल सकते हैं. कई सारे पेजेस बनाए हुए हैं देखो. एंड इनसाइड ईच एंड एवरी पेजेस देयर आर सब पेजेस आल्सो. जैसे मैं किसी पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो वहां से मुझे उसकी डिटेल्स मिलेगी. मुझे फॉर एग्जांपल ऐसा चाहिए कि अबाउट आर्काइव. आई वांट टू सी व्हाट इज आर्काइव. आई कैन क्लिक ऑन अबाउट आर्काइव. जैसे ही अबाउट आर्काइव वाला पेज ओपन हुआ तो उसमें देखो उसकी जो डिटेल्स है, ट्रस्ट कौन है, टीम में कौन कौन लोग हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स मिलेगी. तो ऐसे आपको कई सारे पेजेस अपनी वेबसाइट में बनाने हैं तो वो भी आप गूगल साइट का यूज करके बना सकते हो. Let's see how to do it. So for that now you can click on this pages option, second tab. As of now you have only one page. This is the home page. Now if you want to go with different page, अगर आपको दूसरा पेज बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, पेजेस ऑप्शन में जाकर यहाँ से आपको प्लस आइकॉन जो दिखाई दे रहा है वो आप क्लिक कर सकते हो. यहाँ से आप दूसरा पेज भी बना सकते हो और दूसरी लिंक भी दे सकते हो. Let me go with this option. I want to create new page. मैंने यहाँ पे न्यू पेज को क्लिक किया. मुझे नया पेज का क्या नेम देना है वो भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. Let's say I want to write contact us. This is going to be the page, contact us, and let's click on done.
तो अभी ये मेरा कॉन्टेक्ट अस वाला पेज आ गया। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखना है तो आई कैन रिमूव इट। देन फॉर एग्जांपल मुझे इस पेज में यहाँ पे बॉटम में मुझे मेरी पूरी डिटेल्स पुट करनी है, तो उसके लिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आई कैन गो टू इंसर्ट ऑप्शन अगेन, create the text box, and here you can write your details. Let's say if you want to contact me, then my name is Ravindra Dankar, head of department engineering at School of Diploma Studies. Want to reach me, then my email address is ravindra.dankar@rku.ac.in, and my mobile number is 8905604055. तो अभी मैंने जो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज है उसमें मैंने मेरी पूरी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी। फाइन, दैट्स इट। तो अभी ये मेरा पेज बन गया। इसमें अगर आपको कुछ इमेजेस डालनी है, कुछ एम्बेड कोड डालना है, कुछ लेआउट डालना है, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। आपको डिवाइडर भी पुट करना है कि आपका जो वेब पेज है उसमें आपको 3-4 पार्ट में उसको डिवाइड करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। बटन प्लेस करना है, बटन के ऊपर क्लिक करके आपको डेटा चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब हम बाद में देखने वाले हैं, because this is not easy to explain everything in one session only. I will take 2 to 3 sessions for creating websites. आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कोई भी कंटेंट कैसे वहां पे डालना है, पेजेस कैसे बनाने हैं और उसको लाइव में कैसे देखना है। फिर बाद में हम कल से देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है, कई सारे ऑप्शंस, वो सब हम कैसे पुट कर सकते हैं। तो अभी ये मेरा पेज बन गया। इस पेज में मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आई वांट वन मोर पेज। I can go to pages option again. From here I can create the new page. You can give the details. And now let's say I want to go with gallery option. Gallery, and just click on done. तो अभी मेरा पेज हो गया। यहाँ पे मुझे गैलरी में कई सारे इमेजेस अपलोड करने हैं, तो यहाँ से मैं इमेजेस ऑप्शन पे जाके उसको अपलोड कर सकता हूँ। Go to the images. Let's say I want to upload this image. Then similarly I want to go with one more. Let me go with the SDS logo, and similarly let me go with School of Engineering's logo. So I have selected 3 images. So in this page there will be 3 images, it will be displayed. So that's it as of now. Let me go with only 3 pages, because in the upcoming sessions we are going to discuss many things. Now we have 5 minutes, so I'm going to explain you how you can publish this website and how you can share this URL to any people, in your relatives, in your friends, how you can share this URL. तो अभी हमने क्या किया, हमारी जो वेबसाइट है उसमें हमने अभी 3 पेजेस बनाए हैं। हमने 3 पेजेस बनाए। कौन से पेजेस है वहां पे? पहला था होम पेज, देन कॉन्टेक्ट अस एंड गैलरी। होम पेज में हमने सब कुछ डाला है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे पुट करना है, इमेजेस कैसे पुट करनी है, यूट्यूब का कोई वीडियो है वो कैसे प्लेस करना है, वो सब देखा। कॉन्टेक्ट अस में हमने क्या किया, दूसरा पेज बनाया, उसमें मेरी जो पूरी डिटेल्स है वो डाली यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स। एंड गैलरी में हमने कुछ इमेजेस डाली ताकि किसी भी पीपल को अगर थोड़ी इमेजेस चाहिए तो वो उसको दिखाई दे वहां पे। तो अभी हमारे पास 3 पेजेस है। अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे पब्लिश करना है। सो व्हाट यू कैन डू, you can click on this option publish. See in the top right corner you can find this option publish. Just click on that और आपको यहाँ पे पूरा URL दिखाई दे रहा है। देखो https://sites.google.com/archive.ac.in/testingdemo। इसको आप कॉपी कर लो। यहाँ पे archive.ac.in आ रहा है बिकॉज मैंने जो वेबसाइट बनाई है उसके लिए मैंने मेरा archive वाला ID यूज किया था, और ये जो है वो गूगल का डोमेन है sites.google.com, which allows you to create your own website. एंड यहाँ पे जो टेस्टिंग डेमो है वो आपने डाला था जब हमने वेबसाइट बनानी स्टार्ट की थी, तब मैंने टेस्टिंग डेमो नेम दिया था। यू कैन गिव योर ओन नेम ऑल्सो। अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ। लेट मी जस्ट कॉपी इट एंड पब्लिश इट। तो अभी वेबसाइट पब्लिश हो गई। अभी इस लिंक आप किसी भी पर्सन को दे सकते हो, मैं आपको भी दे सकता हूँ। लेट मी जस्ट शेयर इट थ्रू चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मैं अगर ये लिंक आपको दे रहा हूँ, देन you can just click on the link and you can see what it gives. मुझे भी अभी देखो यहाँ पे वो लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरी टैब में वो लिंक को पेस्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए, एंड पेस्ट।
देखो यहाँ पे लिंक आ गई, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखो जो भी हमने वहां पे किया था वो सब यहाँ पे आ गया। टेस्टिंग डेमो नेम है, होम पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, गैलरी है, ये पहला पेज है, वेलकम टू आरके यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लिंक है, इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सी इट गोज टू द यूट्यूब। जैसे मैंने पहले बोला था, दिस इज नॉट द आइडियल वे टू गिव द लिंक। तो ये मेरी वेबसाइट से यूट्यूब में चला गया। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग टू बी हियर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एम्बेड कोड किया। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो वीडियो है, देखो वीडियो यहाँ पे ही लोड हो रहा है। सिमिलरली मेरा दूसरा वीडियो है, इसको भी मैं यहाँ पे ही लोड कर सकता हूँ। देखो, then there are two logos also, so likewise you can put your things. Now let me go to the contact us page। तो यहाँ से मैं दूसरे पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, so it goes to the next page and you can see whatever I have written in contact us page, I am able to do that। फिर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप अपना वेब पेजेस को बना सकते हो। मैंने अभी आपको ये सिखाया कि आप कैसे कर सकते हो, फाइन। फिर अपनी जो क्रिएटिविटी है वो आपको वहां पे डालनी है, उसके हिसाब से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। फिर मैं गैलरी का पेज जो है वो ओपन करता हूँ, तो वहां पे देखो आपको 3 इमेजेस दिखाई दे रही। तो ये मेरी पूरी वेबसाइट हो गई। देखो, होम, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी। अभी हम बाद में कल से देखेंगे कि उसमें दूसरे जो भी फीचर्स है, जो भी ऑप्शंस है, वो कैसे डालना है। इसी वेबसाइट में हम आगे बढ़ेंगे, वहां पे कई सारे पेजेस बनाएंगे, उसमें कई सारे जो फीचर्स है वो ऐड करेंगे। एंड सो नाउ वी हैव लेस देन 1 मिनट। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट देन टेल मी। आज का जो सेशन है उसमें कोई आपको स्पेसिफिक डाउट है देन टेल मी।